Chalo, shall we proceed? Yes, sir. Now the crux of the topic, most important part we are going to discuss today, that is section 23, computation of annual value. What is annual value? थोड़ा याद करते हैं, पुराना बहुत सालों पहले हमने डिस्कस किया था. Annual value of the property. Annual value is taxable. What is annual value? Annual value means government decided value or your actual rent, whichever is higher. वो सब हमने डिस्कस किया था roughly. Now the detailed discussion of section 23, computation of annual value. Section 23, the most important provision of house property. पहले तो अच्छे से मस्त हेडिंग लगा दो, section 23, computation of annual value, and then fasten your seat belt and sit tight. Okay. 23, subsection 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 major subsection. 23 के अंदर 5 main subsection है, 5 provisions है. Firstly, we will discuss 23 subsection 1. 23 subsection 1 talks about let out property. Whatever the discussion is there in subsection 1 is of let out house. Let out house, fine. Let out house means either for residential purpose or for any other purpose it is let out. Okay. सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब लोग गवर्नमेंट डिसाइडेड रेंट वाला. That is what reasonably expected from this particular property. We had a discussion in the very first session that if government decided value is X amount, we are supposed to calculate that also if our rent is lower. Now, what is government decided value? That is reasonable expected rent. Firstly, we will discuss in detail all that government decided value. Then we'll move on to our actual rent. Actual rent is what we are charging, that is either received or receivable. Fine. So firstly, let us go to government decided value. So 23 subsection 1. सबसे पहले तो फिर से नवकार स्पाइरल ओपन करके बैठ जाओ, हाथ में पेंसिल रखना, जब भी जहां भी मैं अंडरलाइन करूं आपको अंडरलाइन करते रहना है, राइट. और याद रहे, फिर से एक बार याद करा देता हूं, समथिंग विच इज इन ब्लू फॉन्ट, इट इज ऑलरेडी देयर इन योर बुक, यू आर नॉट सपोज टू राइट. Something which is in black font, you are supposed to note down, it's a part of your last minute revision notes. Fine. Even a detailed notes are there. Okay. Now 23 subsection 1, if you read the very first line, what it says, for the purpose of section 22, the annual value of the property shall be deemed to be. 23 gives the provision for determining the annual value of the house property. What it says, for the purpose of section 22, the annual value of the property shall be deemed to be. ऐसा क्यों लिखा है for the purpose of section 22? Because section 22 says annual value of the property is taxable. Section 22 क्या बोलता है? Annual value is taxable. For that purpose, what is annual value of the property? Property का annual value क्या होता है? Property annual value shall be deemed to be what? Clause A. Simple सा है. Clause A. We are talking about annual value and firstly we are talking about that government decided rent जिसको हम लोग बोलेंगे reasonable expected rent. Now what the clause A says? The sum for which property might reasonably expected to let from year to year. Sum for which property reasonably expected to let from year to year. Sum for which का मतलब rent. Reasonably expected to let, reasonable expected rent. Year to year, that means annual. Clear? बिल्कुल सिंपल. मतलब इस प्रॉपर्टी का एक साल का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होना चाहिए. तो भैया कितना होना चाहिए सर? वैल्यू मतलब कि सम फॉर विच मतलब क्या, कितना होना चाहिए. तो भैया इसके अंदर अच्छा सेंटेंस दूसरा भी है. दूसरे सेंटेंस जो अंदर नहीं दिखेगा, ढूंढने का नहीं, बताता हूं. ओके. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. नाउ व्हाट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट? तो इट सेज इट इज
higher of municipal valuation of the property or fair rent of the property, but subject to maximum of standard rent of the property. Okay, higher of municipal valuation of the property or fair rent of the property, but subject to maximum of standard rent of the property. So municipal valuation, fair rent, standard rent, three different words are there. We'll discuss one by one what is its particular municipal valuation and fair rent and standard rent. But understanding purpose, what is reasonable expected rent? What is reasonably expected? So municipal valuation of the property or fair rent of the property, whichever is ultimately higher, but subject to maximum of standard rent of the property. Okay, this is clause A. Now, legal language, something which is in blue color. Further interpretation, something which is in this black color. Okay, तो पहले तो इस पॉइंट को हम लोग और आगे लेके जाए, उसके पहले जितना ब्लैक फॉन्ट में दिखता है उसको लिखना है. ए क्लॉज के अंदर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और उसके नीचे इट इज हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन of the property or fair rent of the property but subject to maximum of standard rent of the property. Fine, पहले जल्दी से इतना सेंटेंस लिख लो एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं बता रहा हूं उसको अंडरलाइन करते जाओ. Okay, annual value deemed to be reasonably expected to let year to year, that is reasonable expected rent. Higher of municipal valuation of the property or fair rent of the property subject to maximum of standard rent of the property. Complex statement है सर, ये सब क्या कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर? सिंपल है. Read the first sentence. Higher of municipal valuation of the property or fair rent of the property. Municipal valuation और fair rent, उसमें से हायर ही लेना है. चलो हायर ले लिया, हायर अमाउंट आ गया अपने पास. सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि ये जो हायर अमाउंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है. मैक्सिमम कैन बी स्टैंडर्ड रेंट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है. तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम दो स्टेप के अंदर बाइफरकेट कर देंगे. वी विल बाइफरकेट दिस इन टू स्टेप्स. व्हाट विल डू? स्टेप 1, वी विल कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अल्टीमेटली वी विल टेक विच एवर इज हायर. म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर. हायर अमाउंट आ गया अपने पास. चलो एक हायर अमाउंट अपने पास आ गया है. सेकंड स्टेप, वैल्यू एज पर स्टेप 1, मतलब जो हायर अमाउंट था उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ. नाउ व्हाट द सेंटेंस सेज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, मतलब कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम कैन बी स्टैंडर्ड रेंट ओनली. कम होगा तो चलेगा, मतलब कि ये वैल्यू स्टेप 1 वाला वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा. सो अल्टीमेटली दोनों में से लेना क्या है, तो विच एवर इज लोअर. फाइन. सो स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर. स्टेप 2 वैल्यू एज पर स्टेप 1, मतलब कि जो हायर अमाउंट है कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. और ये जो लोअर अमाउंट आया उसको बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. दिस इज कॉल्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. फाइन. अब थोड़ा समझते हैं ये दो वर्ड्स, म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट, और फिर तीसरा वर्ड आराम से समझेंगे स्टैंडर्ड रेंट. पहले लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स. इट इज ऑल्सो ऑफ 200 square yards. This is of Mr. X. This one is yours. And both this property is in the same area. Say for example, area
NA1. There is another area NA2. There is a property of 200 square yard. This one is of Mr. Y, and here is the municipal limits of, that is a two different area. This particular area is NA1, this particular area is NA2. Now what is municipal valuation? Firstly we'll take municipal valuation. Municipal valuation is nothing but the annual letting value as per municipal record. एनुअल लेटिंग वैल्यू एज पर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, मतलब कि ऐसा वैल्यू जो म्यूनिसिपैलिटी ने डिसाइड किया है ईयरली बेसिस पे आपके प्रॉपर्टी की रेंट कमाने की ताकत कितनी है, दैट इज एनुअल लेटिंग वैल्यू एज पर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, जिसके बेस पे यू आर रिसीविंग योर म्यूनिसिपल टैक्स बिल. जो म्यूनिसिपल टैक्स बिल आप लोग रिसीव करते हो, that municipal tax is calculated on the basis of that annual letting value of the property. So municipal valuation will be available for this property also, for this property also, for this property also, और ये दोनों प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू सेम होगा क्योंकि सेम एरिया के अंदर है. ओके, सो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन is available for any property, it is annual letting value as per municipal record. अब दूसरा वर्ड लेते हैं फेयर रेंट. फेयर मीन्स रीजनेबल, रीजनेबल मीन्स व्याजबी. व्याजबी मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेंट रीजनेबली कितना होना चाहिए, जेन्युइनली कितना होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स थे, उसका जो प्रॉपर्टी है 20,000 पर मंथ रेंट से किसी को भाड़े पे दिया है. मिस्टर वाई हैज ऑल्सो लेट आउट द प्रॉपर्टी फॉर से 15,000 पर मंथ. मिस्टर वाई ने उसकी प्रॉपर्टी 50,000 पर मंथ से रेंट पे दिया है. 20,000 पर मंथ इज रेंट चार्ज बाय मिस्टर एक्स, 15,000 इज बाय मिस्टर वाई. नाउ व्हाट गवर्नमेंट विल से, इफ द रेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स इज 20,000, then you should also have the rent of 20,000. that is fair rent. मेरा भी रेंट प्रॉपर्टी का 20,000 होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाजू वाला उतना लेता है तो आपकी प्रॉपर्टी में से भी उतना तो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इट इज इन द सेम एरिया. सो व्हाट इज फेयर रेंट? रेंट ऑफ अदर सिमिलर प्रॉपर्टी, अदर सिमिलर प्रॉपर्टी इन नियर और सेम लोकालिटी, नियर और सेम लोकालिटी. So municipal valuation, annual letting value as per municipal record, fair rent, rent of other similar in near or same locality. Third, standard rent. Standard rent, as the word suggests, standard मतलब there must be some ceiling limit. Standard, इससे ज्यादा रेंट एक्सपेक्टेड नहीं है. गवर्नमेंट डू नॉट विश के इससे ज्यादा रेंट यहां पे हो. क्यों? इट मे बी अ नोटिफाइड एरिया, it may be a backward area, it may be the area where lower class, poor class, middle class are there. So वहां पे एक रेंट का सीलिंग लिमिट लगेगा, that is as per Rent Control Act. City to city it is applicable in different areas, in some notified areas only. For example, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, say it is in a posh area. If it is in a posh area, तो उसके ऊपर कोई रेंट के सीलिंग लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है. बट सपोज this particular area NA2, this area is a notified area. If it is a notified area, then the ceiling limit of Rent Control Act will be applicable. So accordingly standard rent will be there for this property, but for your property standard rent cannot be there. आपकी प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के लिए कोई रेंट की सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. बाजू वाली जो मिस्टर वाई की प्रॉपर्टी है उसके लिए रेंट सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल है क्योंकि एक पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया में है, तो स्टैंडर्ड रेंट इज एप्लीकेबल. दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन, व्हाट इज फेयर रेंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, ये सब कुछ याद नहीं रखना है. एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह अमाउंट आपको दिया होगा. सो यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट. ये सिर्फ मैंने
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताया व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन, व्हाट इज फेयर रेंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट। सो ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया है ये सब मिथ्या है, मोह माया है, इसको जाने देते। हमें क्या लिखना है, तो वन बाय वन लिखेंगे। हियर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, municipal valuation is the annual letting value as per municipal record on the basis of your municipal tax, on the basis of which your municipal tax is decided. Fair rent is the rent of other similar property in near or same locality, and standard rent is as per the Rent Control Act, ceiling limit on rent expected by the appropriate authority. Appropriate authority may be state authority or any local authority. Fine. So अल्टीमेटली याद क्या रखना है सर, ये सब कुछ डिस्कस तो कर लिया आपने। व्हाट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस, तो याद इतना ही रखना है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। स्टेप 2 वैल्यू एज पर स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एंड दैट लोअर अमाउंट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। दिस इज व्हाट रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर प्रॉपर्टी ऑन एनुअल बेसिस। पूरे साल का आपके प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए, रीजनेबली आपकी प्रॉपर्टी में से इतना रेंट मिलना चाहिए, दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। करेक्ट। नाउ राइट डाउन दिस स्टेप 1, स्टेप 2 एंड द मीनिंग ऑफ दिस 3 फ्रेज फास्ट। खुद का एग्जाम्पल बना के अभी लिखना है तो लिख के रखो, बाकी एक एग्जाम्पल हम लोग फिर से लेने वाले हैं। आज एक दो जन ही ऐसे है जिसके पास आई कार्ड नहीं है। हो गया रेडी सर? बाकी है, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। हो गया? चलो जल्दी भाई, एक ही बार लिखना है, रिवीजन अभी नहीं करना है, रिवीजन करेंगे बाद में।
Okay, so let us proceed further. Now सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 का फर्स्ट क्लॉज हमने किया, क्लॉज ए विच टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. नाउ विल प्रोसीड टू क्लॉज बी. Clause B, where the property or part of the property is let and the actual rent received or receivable by the owner in respect of the property is in excess of sum referred to in clause A, then amount so received or receivable. Very nice legal language. Property or part of the property is let and the amount of actual rent received or receivable is in excess of sum referred to in clause A, then amount so received or receivable is एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू तो हेडिंग में ही था भैया. ओके, व्हाट डज इट मीन सर? धीरे धीरे जाते हैं. प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, जो भाड़े पे दिया है. एक्चुअल रेंट मतलब वॉट एवर यू आर चार्जिंग एक्चुअली मे बी रिसीव्ड और रिसीवेबल. रिसीव्ड और रिसीवेबल इनडायरेक्टली इट सेज दैट ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल रेंट नहीं मिला होगा तो भी टैक्स तो भरना पड़ेगा. रिसीव्ड और receivable by the owner in respect of this property thereof in respect thereof is in respect of this property is in excess of sum referred to in clause A. sum referred to in clause A मतलब कि previous clause मतलब कि reasonable expected rent मतलब कि government decided value. the amount so received or receivable मतलब कि जो actually आपको मिला है वो annual value होगा. simple understanding में बता दूं अभी एकदम सिंपल. इफ एक्चुअल रेंट मतलब व्हाट यू आर चार्जिंग इज इन एक्सेस ऑफ मतलब कि हायर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू, उससे अगर हायर होगा तो क्या करेंगे? तो एक्चुअल रेंट टू बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सिंपल, फाइन. सो इफ एक्चुअल रेंट इज हायर देन reasonable expected rent, actual rent is gross annual value. But if not then obviously reasonable expected rent. If clause A is not applicable, clause B is applicable. B is not applicable, then A is applicable. Ultimately it is annual value of the property. So if actual rent is higher than reasonable expected rent, actual rent. But if it is lower than reasonable expected rent, then reasonable expected rent to be considered as annual value. So इतने डिस्कशन से कुछ दिमाग में आता है कि और आगे कैसे बढ़ा जाए. हमने ऑलरेडी क्लॉज ए के अंदर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तो कैलकुलेट करके रखा है. क्लॉज बी से हमें एक्चुअल रेंट भी मिल गया है. अब क्लॉज बी के इंटरप्रिटेशन से क्या लगता है कि अल्टीमेटली रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट को कैसे कंपेयर किया जाए? परफेक्ट, जो सोचा वही है. विल हैव स्टेप 3. स्टेप 3 वी विल कंपेयर व्हाट? वैल्यू एज पर स्टेप 2. वैल्यू एज पर स्टेप 2 was reasonable expected rent. We will compare that reasonable expected rent with actual rent. Reasonable expected rent actual rent के साथ कंपेयर करेंगे. Ultimately whichever is higher to be considered as annual value, but this is your gross annual value. ये आपका बनेगा gross annual value. Okay. अब थोड़ा फिर से एक बार A और B को कंबाइन करते हैं और साथ में लेते हैं. क्लॉज ए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, क्लॉज बी एक्चुअल रेंट. अल्टीमेटली विच एवर इज हायर टू बी कंसिडर्ड एज एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. जो सेंटेंस थे अपने हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, उसको हमने स्प्लिट किया था स्टेप 1 स्टेप 2 और फिर उसके आगे हमने बनाया स्टेप 3. और स्टेप 3 से जो हमें मिला दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. फाइन. ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दिस केस जो एक्चुअल रेंट लेना है, एज आई सेड अर्लियर, इट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल. रिसीव्ड और रिसीवेबल इंपॉर्टेंट वर्ड्स. फाइन. फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू we will deduct what? Municipal or local taxes which is paid by owner to determine the net annual value.
सो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा है, अब आगे बढ़ेंगे स्टेप 3 से। स्टेप 3 विल बी वैल्यू एज पर स्टेप 2 or actual rent, whichever is higher, and that higher amount is gross annual value. From gross annual value, it is actually annual value, but from that one deduction is allowed, that is of municipal tax which is paid by owner. म्यूनिसिपल या लोकल टैक्सेस जो ओनर ने पे किए हैं उसका डिडक्शन मिलेगा, वो डिडक्शन माइनस कर देंगे। सो अल्टीमेटली इट इज नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू पॉपुलरली नोन एज एनुअल वैल्यू, correct? So gross annual value less municipal tax paid by owner, net annual value. Something which is in black, start writing. Important words. Received or receivable. You are supposed to write this also. Gross annual value. So this is all about let out house basic things. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक डिस्कशन किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 से मिल गया हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू वी डिडक्ट म्यूनिसिपल और लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर टू अराइव एट अ नेट एनुअल वैल्यू। फाइन, अब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर आते हैं। से फॉर एग्जांपल यू हैव लेट आउट अ प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है। टेनेंट मिस्टर एक्स रेगुलरली रेंट पे करता है आपको वो, फिर अचानक से ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी घर खाली करके चला गया। 1 फरवरी ही हैज वैकेट द प्रॉपर्टी, घर खाली करके चला गया। फेब्रुआरी एंड मार्च 2 months आपको कोई नया टेनेंट नहीं मिला है। सो अल्टीमेटली आपका जो घर था वो खाली पड़ा है। ओके, सो फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मार्च यू कुड नॉट रिसीव एनी रेंट। क्यों रिसीव नहीं कर पाए? क्योंकि घर ही खाली है, कोई टेनेंट ही नहीं है, तो कोई रेंट मिलेगा ही नहीं। सो ये जो सिचुएशन है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मार्च, उसको हम बोलेंगे वैकेंसी। And for vacancy, clause C is applicable. Clause C is basically meant for vacancy. Now what the clause C says? आगे बढ़ते, बहुत ही ध्यान से पहले सुनना, फिर समझना, फिर पढ़ना, फिर इंटरप्रेट करना, फिर मुझे बताना what is this। पहले मैं बोल देता हूं एकदम सिंपल, नहीं पहले लीगल। When property or part of the property is let, मतलब कि भाड़े पे दिया है, and remain vacant मतलब कि खाली था, for whole or part of the year, या तो पूरे साल या थोड़े दिन के लिए या थोड़े महीनों के लिए, and your actual rent मतलब कि जो आप चार्ज करते हो is lower than reasonable expected rent, मतलब कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से आपका एक्चुअल रेंट कम है। क्यों कम है?
तो बिकॉज ऑफ दिस वैकेंसी, इस वैकेंसी की वजह से कम है, तो even if lower amount, actual rent to be considered as gross annual value. पहले याद कर लेते हैं स्टेप 3 में क्या लिखा है। तो स्टेप 3 में लिखा था हमने RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब कि स्टेप 2 वाला वैल्यू, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। वैसे कंपैरिजन है विच एवर इज हायर, बट ये अगर एक्चुअल रेंट जो है वो वैकेंसी की वजह से लोअर हो जाता है तो एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। ओके, व्हाट द लीगल लैंग्वेज सेज, where the property or part of the property is let and remain vacant during whole or any part of the year, and owing to such vacancy the actual rent received or receivable by the owner in respect thereof is less than the sum referred to in clause A. Sum referred to in clause A, that is RER. The amounts or received or receivable, amounts or received or receivable is your actual rent. Correct? फिर से एक बार, प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट। अब इसमें साथ में थोड़ा थोड़ा करते जाते काम की चीज। प्रॉपर्टी इज लेट मतलब कि पहले वो प्रॉपर्टी लेट आउट होना चाहिए, देन ओनली देयर विल बी द क्वेश्चन ऑफ वैकेंसी। एंड रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। होल और पार्ट ऑफ द ईयर मतलब कि या तो पूरे साल वैकेंट था या तो थोड़े महीने या थोड़े दिन के लिए वैकेंट था। ओइंग टू सच वैकेंसी, ओइंग टू वैकेंसी मतलब कि ओनली ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से ही एक्चुअल रेंट मतलब कि आपने जो एक्चुअल रेंट चार्ज किया है इज लेस, एक्चुअल रेंट इज लेस देन व्हाट, क्लॉज ए सम। क्लॉज ए का सम मतलब कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट लोअर है एंड इट इज लोअर ओनली ड्यू टू वैकेंसी, देन अमाउंट्स और रिसीव्ड और रिसीवेबल इज एनुअल वैल्यू। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझने के लिए, ये पर्टिकुलर सी पॉइंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले फिर से इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। एक्चुअल रेंट इज lower than reasonable expected rent and it is lower only due to vacancy, otherwise actual rent lower नहीं था। तो actual rent to be considered as annual value। annual value मतलब पहले gross annual value, उसमें से municipal tax less करके net annual value। okay, for example let us take some hypothetical figures। step 1, what is step 1? Municipal valuation। for example municipal valuation is 4 lakhs or fair rent, fair rent is say for example 4,50,000। there is some issue। First step what we'll take, whichever is higher, that higher amount is what, 4,50,000। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आराम से समझना। स्टेप 1, स्टेप 1 इज व्हाट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, whichever is higher। say for example municipal valuation is 4 lakhs or we further compare it with fair rent। fair rent is say 4,50,000। first step we will take whichever is higher, so higher amount is 4,50,000। step 2,
We will compare this value as per step 1, that is 4,50,000. Standard rent. Standard rent, say for example, it is 3,75,000. So step 2, what we will take, whichever is lower, that is 3,75,000. ये जो 3,75,000 आया उसको बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. दिस इज योर RER. Step 3, very important and crucial. Step 3, we will compare what? Reasonable expected rent. Reasonable expected rent is 3,75,000. Or actual rent. Actual rent, for example, you are charging 35,000 per month. आप 35,000 पर मंथ चार्ज करते थे तो पूरे साल का मिलना चाहिए था 4,20,000. 420 तो मिलना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ वैकेंसी 35,000 2 मंथ्स के लिए नहीं मिला. फेब्रुआरी एंड मार्च 2 मंथ्स का अगर एक्चुअल रेंट 70,000 नहीं मिला है तो योर एक्चुअल रेंट इज 3,50,000. एक्चुअल रेंट है आपका 3,50,000. कंपेरिजन सेज विचएवर इज हायर. कंपेरिजन क्या बोलता है? विचएवर इज हायर. तो वैसे 375 और 3,50,000, 375 और 3,50,000, विचएवर इज हायर. तो हायर क्या है? तो वैसे तो 3,75,000 है, बट ये एक्चुअल रेंट जो है ये इससे लोअर होने का रीजन क्या है? तो सिर्फ वैकेंसी है. अगर ये वैकेंसी नहीं होता तो ये 70,000 भी नहीं होता, और अगर ये 70,000 नहीं होता तो मेरा एक्चुअल रेंट 420 होता. ये 420 तो 375 से हायर है. Had there been no vacancy, my actual rent would have been higher than reasonable expected rent. So even if comparison says whichever is higher, we will consider 3,50,000 as gross annual value in step number 3. 3,50,000 to be considered as gross annual value, even if lower amount. क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट लोअर होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी था. क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं होता तो एक्चुअल रेंट हायर होता, और अगर एक्चुअल रेंट RER से ज्यादा होता तो फिर एक्चुअल रेंट को ही GAV माना जाता. ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी ये लोअर है, सो एक्चुअल रेंट टू बी कंसिडर्ड एज 3,50,000. और ऐसा ही ऊपर इंटरप्रिटेशन में पढ़ेंगे. पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, remain vacant during whole or part of the year. Is let is very important word. Vacant during whole or part of the year. Owing to such vacancy, जो हमने देखा owing to vacancy वाला point. Actual rent received or receivable. Actual rent ये अपना जो received या तो receivable है, is less है. Then the sum referred to in clause A. clause A का sum था 375, उससे 350 कम है. अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब 350 जो मिला है उसी को एक्चुअल एनुअल वैल्यू मतलब कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा. दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज C. अब इसको जाने देते हैं, थोड़ा चेंज करके एक एग्जाम्पल लिखते हैं. ये सिर्फ समझने के लिए था, इसको लिखना नहीं है. विल टेक द एग्जाम्पल लाइक दिस. सिंपल अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअल रेंट is lower than reasonable expected rent only due to vacancy. Actual rent to be considered as gross annual value even if it is a lower amount in step number 3. For example, if reasonable expected rent is say 3,50,000, थोड़ा चेंज किया है. Reasonable expected rent अगर 350 होगा तो एक्चुअल रेंट यू आर चार्जिंग 30,000 पर मंथ, मतलब कि आपका एक्चुअल रेंट पूरे साल के लिए कितना होना चाहिए? 30,000 के हिसाब से 360 होना चाहिए. एंड देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 2 मंथ्स. स्टेप 3 क्या बोलता है? RER और AR विच एवर इज हायर. RER इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, AR इज एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर. कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा? तो 350 और 30,000 इंटू 12 माइनस 30,000 इंटू 2 बिकॉज ऑफ वैकेंसी. So 3 lakh हो जाएगा. Higher is 3,50,000, but actual rent is lower and it is lower only due to vacancy. Otherwise 360 is higher than 3,50,000. So as per clause C, actual rent 3 lakh to be considered as gross annual value. Fine. So clause C के अंदर
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अंडरलाइन करके दैट इज से आपको लिखना है, मतलब कि जितना ब्लैक में दिखता है वो आपको लिखना है और लास्ट लाइन भी खास लिखनी है. स्टार्ट अंडरलाइनिंग द थिंग्स. इज लेट vacant whole or part of the year owing to vacancy, actual rent less than amount referred to in clause A, then amounts or received or receivable. अगेन आई रिपीट, जो ब्लू फॉन्ट्स में है लिखना नहीं है, जितना ब्लैक में है वही लिखना है. ब्लू इज ऑलरेडी देयर इन योर नौकार स्पाइरल. लिखने में ध्यान पूरा. Shall we proceed? आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड, मेक इट फास्ट. एग्जाम्पल खास लिखना अंडरस्टैंडिंग पर्पस. क्लॉज सी के वर्डिंग्स थोड़े से टिपिकल है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट क्लॉज ए बी सी. फिर से एक बार, क्लॉज ए के अंदर क्या था? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. क्लॉज बी के अंदर क्या था? एक्चुअल रेंट. क्लॉज सी के अंदर क्या है? तो वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट लोअर है. ओके, आई नो यू हैव वन क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर ये सब तो ठीक है, बट इफ इन द सेम एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख होता तो, अगर 4 लाख होता तो, मतलब कि 350 की जगह पे 4 लाख होता तो क्या करते? तो भैया गवर्नमेंट ने आपको बोला था ना 4 लाख तो लेना चाहिए था ना पूरे साल का, उसके बदले सिर्फ 360 ले रहे हो, तो वैसे भी गुनाह कर रहे हो. एंड गवर्नमेंट हैज अ रीजन टू बिलीव कि अगर आप इतना रेंट कम शो कर रहे हो तो बाकी मस्ट बी इन कैश, क्योंकि कोई भी रेशनल पर्सन कम रेंट चार्ज नहीं करेगा.
मतलब कि अगर आप बोलते हो कि आपका रेंट कम है तो देयर मस्ट बी सम एलिमेंट ऑफ टैक्स इवेजन. फाइन. So in that case, obviously 4 lakhs to be considered as reasonable expected rent. But it is a rare to rare situation. 99% केस एक्चुअल रेंट RER से ज्यादा ही होगा. एक्चुअल रेंट RER से ज्यादा होगा. अगर नहीं होगा तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ओनली, इसी एग्जाम्पल के अंदर, इफ 4 लाख इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इंस्टेड ऑफ 3,50,000, तो फिर ये क्लॉज सी वगैरह कुछ देखना नहीं है. एक्चुअल रेंट लोअर जो है वो सिर्फ वैकेंसी की वजह से लोअर नहीं है, उसके पहले भी एक्चुअल रेंट लोअर था. यू आर चार्जिंग ओनली 3,60,000 व्हाइल गवर्नमेंट इज सेइंग 4 lakhs. यू शुड हैव टू पे, यू आर सपोज टू पे द टैक्स ऑन 4 lakhs. फाइन. So that is all about clause A, B, C. Clause A is RER, B actual rent, C actual rent, and if at all any vacancy is there and actual rent is lower. Now we'll proceed further. We'll go to the some additional provisions of section 23 subsection 1 let out house. subsection 1 let out house. एक सिचुएशन हमने देख ली है. अब दूसरी सिचुएशन के ऊपर आते हैं. बीच में हमने एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स या तो लोकल अथॉरिटी का जो टैक्स है उसको माइनस किया है. नाउ फॉर दैट म्युनिसिपल टैक्स व्हाट द प्रोविजन सेज, प्रोवाइडेड दैट टैक्स इज लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी in respect of the property shall be deducted. मतलब किस में से डिडक्ट करें, तो ऑब्वियसली ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसीलिए हमने पहले फाइंड किया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस विच आर पेड बाय ओनर, irrespective of the previous year in which liability to pay the tax was arise. मतलब कि liability to pay such taxes was incurred by the owner according to the method of accounting regularly employed by him. Okay. In determining the annual value of the property of the previous year in which the taxes are actually paid by him. इसका मतलब क्या हुआ सर? सिंपल है सर, म्युनिसिपल टैक्स को ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करके नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचना है. इसमें बड़ी बात क्या है? तो इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें दो वर्ड्स लिखे. एक है irrespective of previous year, irrespective of previous year in which liability to pay such tax was incurred, और दूसरा है method of accounting regularly employed by him. इसका मतलब क्या हुआ? If you are following accrual, तो accrual basis of accounting you must have recorded municipal tax as your expense. सिंपली म्युनिसिपल टैक्स को एक्सपेंस मान लिया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, डिडक्शन नहीं मिलेगा. कब मिलेगा? जब उसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे. सो म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस. ओनली ऑन पेमेंट बेसिस मतलब कि जिस ईयर में पे किया हो उसी ईयर में अलाउ होगा. अब एक पर्टिकुलर ईयर में आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो वो उसी ईयर का होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लायबिलिटी टू पे वॉज अराइज्ड, मतलब कि कोई भी ईयर का म्युनिसिपल टैक्स हो, जरूरी नहीं है कि करंट प्रीवियस ईयर का ही हो. अर्लियर प्रीवियस ईयर का भी कोई म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पहले पे नहीं किया था इस ईयर में पे किया, इफ यू पेड इन द करंट प्रीवियस ईयर, तो उसका डिडक्शन आपको करंट प्रीवियस ईयर के ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ही मिलेगा. अर्लियर ईयर में उसका डिडक्शन नहीं मिला था बिकॉज इट वॉज जस्ट ड्यू, यू हैव नॉट पेड. सो द बॉटम लाइन, म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन ओनली ऑन पेमेंट बेसिस. सिर्फ पेमेंट बेसिस पे उसका डिडक्शन मिलेगा, और वो म्युनिसिपल टैक्स जितना भी पे किया हो, वो चाहे करंट ईयर का हो या अर्लियर प्रीवियस ईयर का हो, पूरे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा. ओके. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो सर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो जाए. ऑफ कोर्स यस, there may be a situation where net annual value becomes negative. कब? बताता हूं. Say your
gross annual value is 5 lakhs. Municipal tax, say yearly municipal tax is say 50,000. पिछले 10-12 सालों से म्यूनिसिपल टैक्स नहीं भरा है, इस साल आपने एक साथ म्यूनिसिपल टैक्स भरा, तो अर्लियर ईयर्स में म्यूनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिला होगा, अर्लियर ईयर्स में डिडक्शन नहीं मिला होगा। इस साल एक साथ आपने मान लो 6 लैक्स भरा है, तो 5 लैक्स में से 6 लैक्स का डिडक्शन मिलेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लैक्स माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, एनी अमाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच इट रिलेट्स, डिडक्शन मिलेगा। नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा 1 लाख। सो नेट एनुअल वैल्यू कभी कभी नेगेटिव हो सकता है बिकॉज द म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। फाइन, इतना ऑलरेडी आपके स्पाइरल में है, उसको अंडरलाइन कर लो। आगे देखते, लिखना क्या है आपको, म्यूनिसिपल और लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर to be deducted from gross annual value. So in case of let out house, annual value of the property will be, annual value of property क्या होगा, स्टेप 1 2 3 से आ जाएगा अपने पास gross annual value. From gross annual value we will deduct municipal or local taxes paid by owner and that will give you net annual value of the property. Okay, खास ध्यान क्या रखना है, तो एक म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे होगा, दूसरा ओनर ने पे किया होगा, तो अगर ओनर ने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो ही डिडक्शन मिलेगा। अगर टेनेंट ने पे किया है तो ऑब्वियसली डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने पॉकेट से पैसा ही नहीं गया है, तो एक्सपेंस का डिडक्शन कहां से हो सकता है, करेक्ट। सो म्यूनिसिपल टैक्सेस इफ इट इज पेड बाय ओनर टू बी डिडक्टेड, in case of let out house the annual value of the property will be like this. अब फटाफट से लिखना है, जितना ब्लैक में है उतना लिखना है, जितना ब्लू में है स्पाइरल में है अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स फास्ट। Again I am saying paid by owner, paid, payment basis deduction. ओके, नाउ विल प्रोसीड टू 23 सबसेक्शन 1 का एक और एडिशनल लास्ट पॉइंट। फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन फर्स्ट। 23 सबसेक्शन 1 लेट आउट हाउस, अभी तक का डिस्कशन RER, AR, वैकेंसी, म्युनिसिपल टैक्स। लास्ट पॉइंट, यू आर द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, यू लेट आउट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर एक्स। आपने प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को भाड़े पे दिया है। मिस्टर एक्स फरवरी मार्च दोनों महीने फ्लैट में रहता था, लेकिन भाड़ा नहीं दिया। भाड़ा नहीं दिया, उसके बाद भाग गया मतलब अब उसको ढूंढना मुश्किल है। मतलब कि अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू रिसीव रेंट, मतलब कि यू कुड नॉट रियलाइज सम अमाउंट ऑफ रेंट, उसको इंग्लिश में बोलेंगे अनरियलाइज रेंट। अब अनरियलाइज रेंट होगा तो क्या होगा, इज इट गोइंग टू अफेक्ट योर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट? नो, इट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली योर एक्चुअल रेंट, एंड एक्चुअल रेंट पे भी इफेक्ट क्या आएगा, तो कम ही हो जाएगा। एक्चुअल रेंट विल बी लोअर डाउन।
So what will be the treatment of this unrealized rent? Unrealized rent is nothing but a kind of bad debts. It is nothing but a kind of bad debts. तो अगर bad debts जैसा कुछ हुआ तो उसका ट्रीटमेंट क्या है इन दिस केस? तो unrealized rent to be specifically deducted from actual rent. Any unrealized rent to be specifically deducted from actual rent. मतलब कि स्टेप 3 के अंदर, ध्यान से सुनना, स्टेप 3 के अंदर जो एक्चुअल रेंट लिखते हैं, स्टेप 3 कंपैरिजन पर्पस एक्चुअल रेंट, इट शुड बी ऑलवेज आफ्टर डिडक्टिंग द पोर्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. एक्चुअल रेंट शुड बी ऑलवेज आफ्टर डिडक्टिंग द पोर्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट लेस करने के बाद ही एक्चुअल रेंट को कंसीडर करना है. करेक्ट. पहले लीगल लैंग्वेज देखते हैं. एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी और सी. क्लॉज बी एंड क्लॉज सी दोनों के अंदर था एक्चुअल रेंट. ऑफ दिस सबसेक्शन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट received or receivable obviously by the owner in respect shall not include, actual rent shall not include, subject to such rules as may be made in this behalf. इसके लिए थोड़े रूल्स बनाए गए हैं अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन लेने के लिए. विल डिस्कस इट लेटर. अमाउंट ऑफ रेंट which the owner cannot realize, मतलब कि if at all any unrealized rent is there, it is to be specifically deducted from actual rent. कोई भी अनरियलाइज रेंट हो तो उसको हमेशा एक्चुअल रेंट से माइनस करना है. दिस इज द वर्डिंग यू ऑलरेडी हैव इन योर स्पाइरल. इफ द ओनर कुड नॉट रियलाइज सम अमाउंट ऑफ रेंट, देन सच अनरियलाइज रेंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट से माइनस करेंगे इफ सम कंडीशंस एज पर रूल 4 आर कंप्लाइड विथ. कंडीशंस एज पर रूल 4 क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे. फिलहाल एनी अनरियलाइज रेंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट. कोई भी अनरियलाइज रेंट होगा तो एक्चुअल रेंट से माइनस करेंगे. सो इन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 मतलब आरईआर और एआर विच एवर इज हायर वाला, तो उसके अंदर जो एक्चुअल रेंट लेंगे इन स्टेप नंबर 3 वी शैल टेक द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट ओनली आफ्टर डिडक्टिंग द पोर्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट. ओनली आफ्टर डिडक्टिंग द पोर्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट. अनरियलाइज रेंट लेस करने के बाद ही एक्चुअल रेंट को कंसीडर करना है. ओके. बिफोर यू राइट, वेट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी एंड अनरियलाइज रेंट? आगे वो क्लॉज सी में देखा था वैकेंसी, इसमें कुछ देखा अनरियलाइज रेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? वैकेंसी कोई टेनेंट था ही नहीं, उसकी वजह से रेंट नहीं मिला, एंड और एक्चुअल रेंट इज लोअर, तो उसके लिए वो क्लॉज सी देखना था. अनरियलाइज रेंट टेनेंट तो था, कोई रहता भी था, लेकिन भाड़ा नहीं मिला. That is your unrealized rent, specifically deducted from actual rent. So unrealized rent is a kind of bad debts. Bad debts जैसा हुआ, गुड्स बेचा था, पैसा नहीं मिला. वैकेंसी बैड डेट जैसा नहीं है, गुड्स ही नहीं बेचा है, प्रॉपर्टी भाड़े पे नहीं दिया था, उसकी वजह से रेंट नहीं मिला है, तो वो कोई अपना बैड डेट नहीं है. सो फ्यूचर में वैकेंसी पीरियड का जो रेंट था, मतलब कि जब कोई रहता ही नहीं था और भाड़ा नहीं मिला था, उसकी रिकवरी आने के कोई चांसेस है ही नहीं. फ्यूचर में वो कभी रिकवर हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो फ्लैट ही खाली पड़ा था. बट अनरियलाइज रेंट मतलब अभी टेनेंट ने पैसा नहीं दिया, भाग गया है कहीं पे, कहीं से आप पकड़ के लाओ उसको, और अगर वो कुछ पैसा देता है तो रिकवरी इज पॉसिबल. सो अनरियलाइज रेंट फ्यूचर में रिकवर होना पॉसिबल है, वैकेंसी फ्यूचर में कभी रिकवर नहीं हो सकता है. सो डिफरेंस बिटवीन अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी. अनरियलाइज रेंट टेनेंट वाज देयर, भाड़ा नहीं दिया. वैकेंसी नो टेनेंट इज देयर, भाड़ा नहीं मिला. दोनों में नुकसान एक्चुअल रेंट का. दोनों के अंदर अपने को क्या कम मिलेगा? तो एक्चुअल रेंट ही कम मिलेगा, बट दोनों का ट्रीटमेंट अलग. अनरियलाइज रेंट स्पेसिफिकली एक्चुअल रेंट से माइनस करके ही स्टेप 3 में लिखना है, एंड वैकेंसी कंपेयर करके देखेंगे क्लॉज सी के हिसाब से वैकेंसी की वजह से ही एक्चुअल रेंट लोअर है कि इट इज ऑलरेडी लोअर. अगर दोनों होगा तो क्या होगा सर? वो हम लोग एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखेंगे. फिलहाल इतना लिखना स्टार्ट करो, मेक इट फास्ट. सबसे पहले अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और जो ब्लैक फॉन्ट्स में दिखता है उसको लिखो फास्ट. 2 मिनट्स.
चलो रेडी, मेक इट फास्ट फास्ट फास्ट। आज का काम आज ही खत्म करके जाते हैं, मेक इट फास्ट। तैयार। ओके, दैट इज ऑल अबाउट 23 सबसेक्शन 1 लेट आउट हाउस। हमने क्या क्या डिस्कस किया जल्दी से एक बार बता देता हूं शॉर्टकट में। 23 सबसेक्शन 1 वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट लेट आउट हाउस, जिसके अंदर क्लॉज ए वी हैव डिस्कस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, क्लॉज बी वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअल रेंट, क्लॉज सी के अंदर हमने डिस्कस किया एक्चुअल रेंट इट इज लोअर ओनली ड्यू टू वैकेंसी, एक्चुअल रेंट में से वैकेंसी माइनस करके कंपेयर करना। साथ में हमने डिस्कस किया इफ एट ऑल एनी म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। किस में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा, तो उसके लिए हमने अभी तक डिस्कस किया स्टेप 1 2 3। स्टेप 3 का जो आंसर आया दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट म्युनिसिपल टैक्स, दैट इज योर नेट एनुअल वैल्यू। और लास्ट का अपना डिस्कशन था अनरियलाइज्ड रेंट। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। 23 सबसेक्शन 1 लेट आउट हाउस, RER, AR, AR माइनस वैकेंसी, म्युनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज्ड रेंट। स्टेप 1 2 3। स्टेप 3 के अंदर दो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, नंबर 1 वैकेंसी, नंबर 2 अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी कंपेयर करके देखना है एक्चुअल रेंट लोअर है कि नहीं। अनरियलाइज्ड रेंट हमेशा एक्चुअल रेंट से माइनस करने के बाद ही एक्चुअल रेंट की अमाउंट लिखनी है। फाइन। स्टेप 1 2 3 से मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, दैट विल गिव यू नेट एनुअल वैल्यू। 23 सबसेक्शन 1 लेट आउट हाउस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कितना छोटा सा था, शुरू होते ही खत्म हो गया। बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज यहाँ पे अटकते हैं। स्टे हेल्दी, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.